ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਕ, ਪਾਵਰ, ਐਨਰਜੀ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੈਟ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਪਲੇ ਵੈਨ ਬੋਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵਸ ਔਰ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਮੂਵ ਓਵਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਨਦਰ ਬੋਡੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਵੈਨ one body moves असल च मूव कर रही है over the surface of another body or tends to mean tries to move over the surface of another body। और अगर एक सेकंड वास्ते देखिए what is first law of motion, उन्हें की किया सी, the body will continue to move on a straight line at uniform speed unless an external force is applied। जब तक बाहर फोर्स ना अप्लाई करिए बॉडी की मोशन ही हो रही है। पर डेली लाइफ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਹਿਡਨ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਟ ਗੈਟ ਸਟੋਪਡ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਟੋਪਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੋਕ, ਵੱਡਾ ਬਲੋਕ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਪਿਆ, ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਮ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ, ਮੀਨਸ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੁਡ ਹੈਪਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ, A is equal to F upon M, so there must be some value of A। A जीरो नहीं रहेगा। अगर किसी बॉडी ते फोर्स एक्ट कर दी है then there must be acceleration in that body। पर मैं जो पुश करता वड्डे बैंड नूं नहीं मूव कर, it means something is की कर negating the effect of my force। कोई ना कोई है जिहड़ी मेरी फोर्स नूं कटदा पिया वा, वो की चीज़ आ, that is force of friction। तो दोनों तरीक़े नाल चाहे बॉडी मूव करे उदों भी एक्ट करती पई है, जो बॉडी नहीं वेले मूव करती, स्ट्राइक टू मूव उदों भी एक्ट कर रही है, दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका काज ही हो सकता। सो लेट अस डिस्कस काज और ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। ये बारे ज़्यादा डिटेल तुहाडे सिलेबस च नहीं है, सो तुसीं दा ओवरव्यू लिखना। काज और ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। ਹੁਣ डिफरेंट टाइम ਤੇ लोग ऑब्जर्वेशन लगाते सन, उन्होंने अपने हिसाब नाल कोई ना कोई सपोज किया, हाइपोथेसिस फिर उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की। सो पहला साडे को ओल्ड व्यू साडे को आ चुका। According to this, roughness of surfaces is the cause of friction। सो एक व्यू पुराना व्यू कह रहा साडे कोल भी जिहड़ा सरफेस ने रफ हुंदे ने, दैट इज़ द काज ऑफ फ्रिक्शन। हुण की साडे किस तरह दा रफ, जिन्ना मर्जी तुसीं समूथ सरफेस बनाने की कोशिश करो, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा मिन्यूटली असीं देखिए विद द हैल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स, की करें इस तरह की साडे को इरेगुलरिटी साडे को आउणगियां, ऊपर नीचे सरफेस होएगा, दूसरा सरफेस इस तरह साडे को आ रहा है, इस तरह का कोई ज़्यादा या कम होने, व्हाट वुड हैपन। सो दीज आर कॉल्ड डिप्रेशंस, कुछ होंदियां प्रोजैक्शंस। कहने का मीनिंग है सरफेस जिहड़े इरेगुलर्स ने, तो व्हाट वुड हैपन, दी जिहड़ी इंटरलॉकिंग वुड टेक प्लेस देयर, ये आपस इंटरलॉक कर जाते हैं, उहदे उपर इरेगुलरिटीज जिहड़ियां ने, डिप्रेशंस ने, एक प्रोजैक्शंस है ने, इहड़ा नीचे नीचे है, इहनूं असीं कहंदे डिप्रेशन।
ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੀਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ, ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦਿਸ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਓਲਡ ਵਿਊ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਊ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੀਏ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਵਿਊ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ force of friction should depend upon area of contact, area ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਦੀ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਵਿਊ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਥਿਊਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ, ਬਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਵਿਊ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ according to this atomic or molecular forces of adhesion between two surfaces is the cause of फिर एक ये थ्योरी आ गई, एडहेशन मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज। कोहेजन मीन्स अट्रैक्शन और अपना अट्रैक्शन विद द और एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम बॉडी, इको बॉडी के आपस जी अट्रैक्शन है उन्होंने कहते कोहेजन, जी दूसरी बॉडी ना होंगे आप कहते अडहेशन कहने है। तो की कह रहा दैट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शन। वो कह रहा जो आ नीचे वाली बॉडी है चलो स्मूथ नहीं हैगी, दूसरी उपर बॉडी एक होर आ गई साढ़े कोल, की कह रहा जिथे साडा कंटैक्ट हो रहा उत्थे एटम्स ते मॉलिक्यूल दे कम वैरी क्लोज टू ईच अदर एंड एडहेसिव फोर्स आ दैट गैट्स इनक्रीज, फोर्स वध जांदियां बड़ियां, दैट इज़ काज चिपक जाते एक तरह का आपस बॉडीज, दैट इज़ द काज ऑफ की फ्रिक्शन। हुण मॉडर्न व्यू च की देखा गया, वो ओल्ड व्यू की कह रहा सी भी जिन्नियां इंटरलॉकिंग ज़्यादा होणगियां उन्नी फ्रिक्शन ज़्यादा, उन्होंने की करना शुरू करता, उन्होंने होर स्मूथ बनाने की कोशिश की। उन्होंने की देखा एक्सपैरीमेंटली जो असीं बहुत एक्सट्रा स्मूथ सरफेस कर दीदा वा, ईवन दैन फ्रिक्शन गैट्स इनक्रीज, उत्थे भी फ्रिक्शन इनक्रीज हो जाती है एक स्टेज तो बाद। इस करके ओल्ड व्यू आ नहीं दस पा रहा सी भी मैं रफनेस जी है उन्हें दूर कर दिता वा काफ़ी हद तक, फिर क्यों जी फ्रिक्शन आ इनक्रीज हो गई। ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ तो दिस आल दिस अगे पहला थोड़े मॉलिक्यूल्स आप कंटैक्ट सी, जिन्ना समूथ होएगा वो सर्फेसिस विल कम क्लोजर टू ईच अदर, जिन्ने लागे आएंगे उन्नी अट्रैक्शन की हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। सो एक तो ये गल प्रूव हो गई भी स्मूथनैस के वधन नाल अट्रैक्शन जी है वधदी पई आ, ये भी एक्सपैरीमेंटली प्रूव किया सी, इहने प्रूव कर लिया। दूसरी गल की हैगी आ भी दिस जी फोर्स डज नॉट फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कंटैक्ट। हुण की हो रहा सी
शुरू जो आप देखा रफनेस ज़्यादा सी ते कंटैक्ट थोड़ी थावां ते हो रहे सन। प्लेटां दा केस साडे को आ रहा, एक इत्थे कंटैक्ट होया, इत्थे कंटैक्ट होया, तो थोड़े पॉइंट्स से कंटैक्ट हो रहा। सो जो एक्चुअल एरिया ऑफ कंटैक्ट आ दैट इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू एपरेंट एरिया ऑफ कंटैक्ट। दो वर्ड सुन लो, एक एपरेंट एरिया ऑफ कंटैक्ट, एक है रियल एरिया ऑफ कंटैक्ट और इन कह दिया आप एक्चुअल। एपरेंट की आ जो बॉडी देख रहे इन्ने एरिया की बॉडी सी, ये असीं उपर लिया के रख दी, ये जिस तरह आ रखिया तो जिन्ना मार्कर का आया दैट इज एरिया ऑफ कंटैक्ट हो गया। इट अपीयरस जो सानू अपीयर हो रहा दिख रहा वा दैट इज एपरेंट एरिया। पर असल च की देखा जाए ये प्रोजैक्शनस है, ये प्रोजैक्शनस है ने दे टच एट फ्यू पॉइंट्स। असल जो एरिया कंटैक्ट आ दैट इज मच स्मॉलर। तो की देखा अट्रैक्शन ही फोर्स ही नहीं बट प्रैशर, यदा की पै रहा नीचे वेट पै रहा। सो वेट पर यूनिट एरिया दैट बिकम्स प्रैशर। ये की चीज़ है, ये तो ज़्यादा समझना है, ज़्यादा लिखना नहीं दे बारे, डिटेल ये बारे लिखने बारे तुहाडे सिलेबस का नहीं पार्ट है। तो समझ लो बेसिकली भी फ्रिक्शन का रीजन की हैगा, तुहाडा सिर्फ समझना ही जरूरी है पासे। तो की कह रहा प्रैशर हैगा। हुण जो प्रैशर ते डिपेंड करता वा जी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो अगर को तुसीं कहो भी यह बॉडी इस तरह की सी साडे कोल, आ टेबल आ एक ब्लॉक है, तुसीं ब्लॉक नूं चाहे इस तरह रख दो, फिर नोट करने की कोशिश करो फ्रिक्शन कितनी है। इधर असीं अपलाइड फोर्स लगावांगे, असीं देखांगे इधर फ्रिक्शन लगती है। एरिया ऑफ कंटैक्ट इत्थे ज़्यादा हैगा, फिर साइड तुसीं करके देखो एक्सपैरीमेंटली इहनूं उपर कर दो, फिर नोट करके देखो वेट सेम रह गया बट एरिया जो टच हो रहा दैट चेंज हो रहा। एरिया के चेंज करने नाल फ्रिक्शन च चेंज नहीं आता, ये अपने मन च पक्का कर लो, क्लीयर हो जाएगा। हुण ये दसना भी क्यों, क्योंकि जो पहला सी की हो रहा सी एरिया जो कंटैक्ट का ज़्यादा वध रहा वा तो की हो रहा वा प्रैशर जोड़ा वा वो उस हिसाब नाल घट जाएगा, मैनेज कर लेगा। हुण जिन्ना कंटैक्ट वधेगा उन्नी फोर्सिस तो वध रही पई आ बट एरिया जोड़ा वा वो भी कंटैक्ट का वधदा पिया। सो वट वुड हैपन दैट रेशो रिमेन्स द सेम। सो इट मीनस जोड़ा प्रैशर आ दैट डिपेंड्स अपॉन दिस वेट अपॉन एरिया। सो ये हुण दोनों गल्लां शो करेगा भी वेट ते डिपेंड करदा वा कौन दिस वेट भी नहीं रादर कहांगे, फिर वेट का की आएगा फर्दर ही देखना, इसका रिएक्शन मिलता पाया फिर देख लाँगे। फिलहाल तुहाडे वास्ते ना अगर हॉरीजेंटल सरफेस है, हॉरीजेंटल है दैन जी फ्रिक्शन आ दैट डिपेंड्स अपॉन द वेट एग्जस्टेड प्रैशर एग्जस्टेड बाय वेट। सो की होएगा जो ज़्यादा समूथ करांगे वट वुड हैपन ज़्यादा क्लोज आ जाएगा तो फोर्स उन्नी होर वधेगी बट उहदे नाल एरिया भी वध गया। सो की होया एरिया ते डिपेंड नहीं, इट शोज दैट जी आ फ्रिक्शन आ दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कंटैक्ट। पहली गल तो जो जो समूथनेस बढ़ावांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ फ्रिक्शन ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ भी सकती एक स्टेज तो बाद। सो की साढ़े को आ गई ਹੁਣ दो गल्लां आ गई। रफनेस इज़ द काज ऑफ, ये भी काज मान ली आप, रफनेस भी काज हैगा फ्रिक्शन का, तो नाल की है दूसरा काज किहड़ा आ गया साढ़े कोल मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक इंट्रैक्शन जिहड़ियां वा दैट इज़ आल्सो काज ऑफ फ्रिक्शन साढ़े को आ गया। डन हो गया। फ्रिक्शन हुण थोड़ी जी कैटेगराइजेशन कर दी आप, एक असीं वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक असीं वर्ड यूज़ कर लेने इंटरनल फ्रिक्शन। असीं अज इंट्रोडक्शन लै रहे फिलहाल ये बारे फ्रिक्शन बारे। एक्सटर्नल की है मीनस जो एक बॉडी साढ़े कोल मान लो बोर्ड है तो उपर है डस्टर जोड़ा मूव कर रहा ना, टू बॉडीज आ रही
किसी बाहरली बॉडी ते जो बॉडी मूव करने की कोशिश करती है, ये कित्थों आंदा वा? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कंटैक्ट। जो दो बॉडीज आपस कंटैक्ट च हैगियां ने, उस समय जी फ्रिक्शन आ रही दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ये की है इंटरनल फ्रिक्शन? रिलेटिव जिस तरह मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ए लिक्विड। उस दौरान किया इट विल काज ऑपोजिशन। इत्थे कोई ऑपोजिशन उदों होएगी जो एक बॉडी दूसरी बॉडी दे बाहर वाली बॉडी ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ मोशन कर रही है, उदों जी ऑपोजिशन आ रही है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन। जो किसी लिक्विड में एक लेयर दूसरी लेयर ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ है ਉਹਨੂੰ ही कहने इंटरनल फ्रिक्शन। भी वो बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ही फ्रिक्शन हैगी दी मूवमेंट 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। ये असी पढ़नी इस चैप्टर साडा ये काम आ, यानी कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ये जी साढ़े को आती है आप टर्म यूज विस्कोसिटी। अजकल तो सर्दियाँ आ रही, देखना शहद नूं तुसीं एक बर्तन दूसरे बर्तन च पाने की कोशिश करो, वो चलन की स्पीड बड़ी घट वा। पानी में पाओगे तो पानी बड़ी छेती ना जो दूसरे गिलास तो दूसरी गिलास चला जाता है। वो क्यों? वो जो वो लेयर्स जड़ियाँ वाटर दी एक उपर दूजे जांदियां उन्हां च जिहड़ी ऑपोजिशन हैगी आ दैट इज़ लो एज कंपेयर टू जिहड़ा आपां शहद दे केस असीं करदे पे हां। हनी जो करदे यूज़ तो दे डिफरेंट लेयर्स आ दे ट्राई टू अपोज ईच अदर एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। जिहदे करके कई लिक्विड जिहड़े छेती ना फ्लो कर जाते हैं, कई जिहड़े देर बाद फ्लो करते हैं ने। ये आपां नहीं डिस्कस करनी, ठीक है। असीं किहड़ी करदे पे आ? एक्सटर्नल फ्रिक्शन की गल कर रहे हैं। ये अगे फरदर फिर 3 कैटेगरीज बन जानी साडे कोल। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। जानोगे साढ़े कोल एक्सटर्नल फ्रिक्शन जड़ियाँ वो गाड़ी आप 3 पार्ट कर देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक और डायनामिक। हाँ दोनों किधर डील कर दियाँ? व्हेन द बॉडीज आर एट रेस्ट दे आर ट्राइंग टू मूव but actually the bodies are not moving with respect to each other. In this case there would be motion। वो केस हैगा। ये फिर असी फरदर 2 केस देख लेने हैं। वन इज स्लाइडिंग, another one is rolling। sliding friction, another one is rolling friction। तो सारा चार्ट समझ आ गया सानू। हुण स्लाइडिंग मीनस की आ? वैन वन बॉडी स्लाइडिंग ओवर दिस आ स्लाइड कर दी भी साढ़े को। ये देखा मैं ये क्या आ रहा साढ़े को? ये रोल करता पाया। ये कर दो, व्हील कर दो, है ना। ये किहड़ा आसान, इन्हूं इस तरह मूव करना है, इट डिफिकल्ट है ना। इस तरह रगड़ के जाना दूसरे सरफेस उपर दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग। घूमते जाना, रोल करते जाना दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग। सो वो ऑपोजिशन वैन कम्स इन टू प्ले वैन बॉडी ट्राइज टू skid slide over the surface of other that is called sliding friction। वो opposition when opposition comes in one body is rolling over the surface of another that is called rolling friction। so चलो शुरू करिए दे बारे आपां। so फर्स्ट साढ़े को कैटेगरी आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन। एक डेफिनेशन क्लीयर सानू हो गई सी, बाकी सारियां डेफिनेशन उहदे वर्गियां ही हैं।
It is an opposing force. That comes into play when one body tries to move over the surface of another body. But actual motion has not yet started. ट्राई करदी पई आ मूव करने वास्ते, हाले असल च मोशन नहीं हुई। उस दौरान जिहड़ी साडे को आ रही है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये साडी स्टैटिक फ्रिक्शन है। जिस तरह मैं कहां कोई हैवी साडे को बॉक्स पिया है, उन्होंने मैं पुश करना चाह रहा, मैं फोर्स लगा रहा वा, बट की हो रहा वा, वो मूव नहीं करता पाया। इट मीनस उस समय मेरी फोर्स नूं कोई अपोज कर रहा वा। वो किहड़ी फ्रिक्शन आ? दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। डन। असल च मोशन हले शुरू नहीं हुई। फिर साडे को सैकंड केस किहड़ा आ चुका, ये नोट कर लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन। जिहड़ा केस आ गया साडे कोल लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिट ना इट इज़ हुंदा मैं बॉक्स से पुश करता पाया सा, हौली हौली फोर्स वधा रहा, मैं फोर्स वधाई जा रहा ने अपलाइड फोर्स आ। की होएगा कि हमेशा बॉक्स उत्थे रहेगा? नहीं। अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगा दाँगा तो व्हाट वुड हैपन, ए स्टेज वुड कम वैन बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। बॉडी मूव करेगी, बट एक स्टेज होएगी वैन बॉडी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, भी हुण बस लास्ट लिमिट आ गई आ, इस तो अगे फोर्स वधी तो व्हाट वुड हैपन, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। एंड मैक्सिमम फोर्स जिहड़ी स्टैटिक फोर्स आ, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज maximum opposing force that comes into play when body is, ऐसा लिख लिया है, ज़्यादा बेटर करना है, at the verge of moving over the surface of another body। इतना सफिशेंट, वैसे ज़्यादा क्लियर करने से लिख लो, बट still the actual motion has not started। ये गल बिल्कुल लास्ट लिमिट आ गई, बस उन्हें मूव होने ही लगी आ। दैट इज़ कॉल्ड मैक्सीमम। उस समय जी मैक्सीमम वो जिन्नी वो लगा सकती है, जोड़ा ब्लॉक आ जिन्नी की फ्रिक्शन में दे सकता, वो लिमिट आ, उस तो बाद वो नहीं जा सकती। वो जी मैक्सीमम जी अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले वैन वन बॉडी इज एट द वर्ज, कंढे ते आ गई बस मूव कर दे, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। साढ़े को आ चुकी है। दो केस आ गए साढ़े को। हुण असीं करिए काइनेटिक फ्रिक्शन। ਇਹਦਾ ਹੋਰ नाम की लिख सकते आप, ब्रैकेट से लिखो डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक कह दो चाहे डायनामिक फ्रिक्शन। इट इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज actually moving over the surface of another body।
हुण बॉडी मूव करना शुरू कर गई है। इस समय भी कोई फोर्स जी मैनू अपोज करती भी इस मोशन को, पर मेरे को फोर्स आ ज़्यादा वा, इस करके बॉडी जी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो वैल्यू बचती भी। अगर मैं कहता मैं 50 न्यूटन फोर्स लगाई है तो जी बॉडी मैनू जी फ्रिक्शन आ रही है दैट इज़ 20 न्यूटन वो अप्लाई करते पी, तो कितनी फोर्स बच गई 30 न्यूटन। दैट विल लीड टू द एक्सलरेशन F/m जिनी भी आएगी। सो आड़ी फोर्स बच के आई मेरी अप्लाइड फोर्स माइनस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो जी चीज़ आ बॉडी उन्होंने मूव करती पी आ। इट मीन हाले मोशन होंदे दौरान भी अपोजिंग फोर्स एक्ट करती भी मेरे ते, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। डन। तो असीं की देखा, चाहे बॉडी खलोती पई आ, चाहे बॉडी जस्ट मूव कर लगी आ, चाहे बॉडी मूव कर रही है, इन एवरी केस सम फोर्स इज देयर दैट विल अपोज द मोशन, जी अपोज करना चाहती मोशन को, एंड दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो तिने केस देखे पास स्टैटिक देख लिया, लिमिटिंग एंड काइनेटिक और डायनेमिक देख लिया। हुण ग्राफ ड्रा करके देखिए द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द अप्लाइड फोर्स। नीचे वाला ग्राफ आ ये सानू शो करेगा कि किस तरह जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज वेरी विद अप्लाइड फोर्स। सो मान ली ए साइड तो की लै लिया अप्लाइड फोर्स जी असी बाहरों फोर्स लगाई है इधर चलती पी है, ए साइड तो कि लगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पंप लगाई है, की देखा जो जो असी अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती पी है टू कैंसल आवर इफैक्ट। इस तरह स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो जो अप्लाइड फोर्स बढ़ाने उन्होंने कैंसल करने वास्ते उन्नी उन्नी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती पई है, तो रिजल्ट क्या आ रहा जीरो फोर्स। फिर एक स्टेज आती साढ़े कोल बस लिमिट आ गई है, इतने ग्राफ साढ़ा इस तरह आ जाएगा। उस तो बाद दिस लाइन वुड गेट पैरेलल टू द हॉरिजेंटल एक्सिस, ये पैरेलल आ जाएगी बिल्कुल। सो आड़ा रीजन है इना दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जी पीक साढ़े शो कर रही है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस तो बाद बॉडी मूव हो रही है, सारी स्ट्रेट लाइन की शो कर रही है दैट शोज काइनेटिक और की डायनामिक फ्रिक्शन। तो आ ग्राफ में ध्यान देख लो, सारी गल समझ आ जाएगी। जो जो अं अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं इधर नूं त्यों तो जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो भी बढ़ती पई है, असी फोर्स बढ़ाई जा रहे हैं। ये स्टेज कम्स मतलब स्टेज ते की फॉर दिस मच अप्लाइड फोर्स जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ हैज़ रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इस तो अगे हम फ्रिक्शन नहीं लगती पई एंड दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन आ चुकी साढ़े कोल। उस तो बाद फिर कुछ करिए असी तो जी बॉडी आ दैट विल स्टार्ट मूविंग विद ए लिटल लोअर फ्रिक्शन। तो आ देखो ये भी नोट कर लो, काइनेटिक फ्रिक्शन जी आ दैट इज़ स्लाइटली लैस दैन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बार इंटरलॉक्स ब्लॉक कर देते आप ब्रेक कर देते हैं, एक बार जो वेल्ड्स आपस अट्रैक्शन होकर चिपके पे तोड़ता हूँ एडी छेती ना बॉन्ड नहीं बनते पे। सो बॉडी मूव करती करती सर कि थोड़ी जी फ्रिक्शन घट जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन एज़ कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन साढ़े कोल।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ, ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। Static friction is self-adjusting force. Explain. अनेक कोई क्वेश्चन पूछ ले। स्टैटिक फ्रिक्शन जी दैट इज सैल्फ एडजस्टिंग, अपने आप एडजस्ट करती पई है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ अपने आप, इट मीनस ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ कंट्रोल करती है अपने आप ਨੂੰ। अगर मैं बाहरों फोर्स लगा रहा वा, जिन्नी मैं फोर्स लगाना वा उन्नू कैंसल करने वास्ते उन्नी कि फ्रिक्शन वो भी खड़ी हो जाती सामने, तो मेरे इफेक्ट करनी कैंसल। मैं होर फोर्स बढ़ाना वा होर बढ़ जाती। इट मीनस मैगनीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इनक्रीजेस विद रिस्पैक्ट टू द अप्लाइड फोर्स। पहली गल आ गई साढ़े कोल। फिर मैं कहा तू इधर नहीं मूव कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इधरों मूव करना शुरू कर देना। वट वुड हैपन, वो जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ, अगर देखिए आप इस तरह, मतलब पी शो कर रहा मैं अप्लाइड फोर्स, एफ शो कर रही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। शुरू में कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, सो नैट फोर्स कितनी है, अगर इन्हें मैं कह दा एफ नैट की आएगा, मान लो इन दोवां का रिजल्ट हैगा। ध्यान देखो, अगर बॉडी की कोई नैट फोर्स लगेगी तो बॉडी मूव करेगी। वैसे दो फोर्सेस होर ने, नहीं कहना कितों, आ देखो एक एम जी वेट डाउन आ, एक साढ़े को उपर लगती पई आ नॉर्मल रिएक्शन। हुण देखो बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, नहीं, बॉडी बस खलोती पई इस जगह पर। इट मीनस आ दोनों आपस करते पे ने, बैलेंस कर रहे हैं। वर्टिकल डायरैक्शन कोई मोशन नहीं हो रही। सो आर कि बराबर है एस केस एम जी, इट इज़ केस फॉर ए हॉरिजेंटल सरफेस, ख्याल रखना। दूसरी गल है रह गई बस, आ फोर्स ही अप्लाई की आ, एक ही साढ़े कोल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं की देखता, शुरू च दोनों जीरो सन, ए भी जीरो तो ए भी जीरो, आंसर कितना आ रहा जीरो। फिर मैं थोड़ी फोर्स अप्लाई की, सो मैं 5 न्यूटन अप्लाई कर दी, पर की देखा लॉक ते बॉडी मूव नहीं की। अप्लाइड फोर्स 5 आ, बॉडी मूव नहीं कर रही, नैट फोर्स की है जीरो। किन्ने मेरा आंसर जीरो किया, किसी ने तो किसी ने मेरी फोर्स कैंसल की है, तो कौन है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये भी बढ़ गई, ये 5 न्यूटन हो गई। मैं कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फोर्स 10 न्यूटन कर दी, चल तेरी 5 हैगी आ ना। इन्हें फिर किया, इन्हें भी 10 न्यूटन कर दी, फिर बॉडी उत्थे खड़ी रह गई। मैं होर फोर्स अप्लाई की 15 न्यूटन, इन्हें भी 15 कर दी, फिर मैं इफेक्ट जीरो कर। इट मीनस दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एडजस्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। जिन्नी फोर्स अप्लाई करदा उहदे हिसाब नाल अपनी फोर्स नूं वधा रही है, जे मैं घटावांगा तो उन्हें घटा रही है। तो पहली गल आ गई, इट कैन चेंज एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड। फिर मेरे मन च आया ओके तुसीं नहीं मानते इधर मोशन करना, तो मैं तुहाडी साइड ते आ जाना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गया ओके, हुण मैं तुहाडी साइड ते आके फोर्स अप्लाई कर दिंदा हैगा। बट की देखा, ये बहुत शरारती फोर्स है, ये नाल ही जंप करके इधर साइड ते आ गई। अगर मैं ईस्ट वाले पास जाना तो वैस्ट आ जाएगी, मैं वैस्ट वाले पास जावांगा तो इन्हें ईस्ट ते आ जाना, मैं साउथ जावांगा इन्हें नॉर्थ आ जाना। क्या मेरे डायरेक्शन चेंज करने नाल ही उन्हें भी अपनी डायरेक्शन इस तरह कर ली भी इट गैट्स ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो की देखा, वो अपनी मैग्नीट्यूड ते अपनी डायरेक्शन एडजस्ट कर लेंदी है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। सो इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
if the applied force is increased gradually means step by step हौली ਵਧਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ it is noted that static force of friction या force of static friction also increases to cancel the effect of applied force. So it is adjusting its magnitude in comparison to applied force. पहली गल ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ each time on changing the direction of applied force adjusts its direction. Each time on changing the direction of applied force, static force of friction adjusts its direction in opposite to the applied force. So static force of friction is a self-adjusting force. ਸਾਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਐਸ ਦਾ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਬਾਡੀ ਸਟੈਟਿਕ ਰਹਿਣੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਆ and that is the function of static force of friction and it is self adjusting force. Done. ਹੁਣ ਕੁਝ ਲਾਸ ਬਣੇ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੋਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ कुछ लास्ट ने कुछ पॉइंट्स ने नंबर 1 the magnitude of force of limiting friction is directly proportional to
द नॉर्मल रिएक्शन between the two surfaces. F सो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। तो जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, P यूज़ करांगा अप्लाइड फोर्स वास्ते, P का वर्ड यूज़ करा इसके अप्लाइड फोर्स जो ਅਸੀਂ बाहरों फोर्स अप्लाई की है। F का वास्ते यूज़ करांगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वास्ते, तो इस केस कि आपां इहो यूज़ करना स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो वास्ते F वर्ड यूज़ करांगा। F इज़ प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा ख्याल रख लो, F R दे ही पैरेलल डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। जो हुणे तुहानूं केस समझाया सी, डायग्राम ना बनाओ बेशक्ति समझण वास्ते है। हुणे असीं गल कीती सी जिहड़े फोर्स आ, इधर अप्लाइड फोर्स है, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ, ये काते डिपेंड कर रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द, मैं गया सी प्रैशर करके होंदी कि वेट पै रहा उहदे उपर, ते वेट पर यूनिट एरिया उत्थों जिहड़ा बनदा सी प्रैशर, दैट इज़ द काज। पर ये किदों हॉरिजोनल केस, अगर तुसीं इहनूं सलांट ते लै जाओ तो वेट का जो रिएक्शन कुछ होर हो जाएगा इस जगह पर। तो ये ख्याल रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन जो दोनों सरफेस हैगा, वो तो जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है। ये पहला साढ़े को ला आ गया, ये ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा। दूसरी गल जी आ, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज independent of the apparent area of contact। और दूसरी गल साढ़े को आ चुकी है भी, चाहे मैं अगर कोई बॉडी साढ़े को है अगर मार्क, चाहे मैनू इस तरह रखा इस तरह मूव करा, उस समय फ्रिक्शन अगर मटीरियल सेम होए तो कोई मैं एरिया चेंज करके इस तरह करके मूव करा, एरिए ते डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। मैं जान के शो करता इतने कि एपरेंट एरिया जो असल सानू दिखाई दिता, जो मान लो बॉडी इनू टच कर रही है तो मैंने लगता भी इन्ना ही एरिया आपस कनैक्ट हो, दैट इज़ एपरेंट एरिया। असल जी पढ़िया वा ये प्रोजैक्शनस ते डिप्रैशनस है ने, तो असल जो एरिया कनैक्ट इस तरह टच करते पे थोड़े पॉइंट्स है ने। तो दूसरी गल तुसीं मेन अपने मन च रख लो, ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कंटैक्ट, ये एरिया ते डिपेंड नहीं करती। थर्ड, its direction is such that it always opposes the direction in which body tends to move। क्योंकि असीं किहड़ी करदे पे हां, मूव नहीं हुई बॉडी, लिमिटिंग फ्रिक्शन बनी स्टैटिक फ्रिक्शन आ। सो हर उस डायरैक्शन के आपोजिट आ जाती है, अपने आप एडजस्ट कर लेंदी आ। अगर इधर मोशन होनी तो बॉडी ने फ्रिक्शन ने वो पिछे लगना ईस्ट वाला तो वैस्ट वाला, साउथ वाला तो फ्रिक्शन नॉर्थ वाला। इट इज़ ऑलवेज आपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, इट इज़ ऑलवेज आपोजिट टू द डायरैक्शन ऑफ मोशन, या टेंडेंसी जिधर है मोशन की वो। It depends on the nature of materials of surfaces। वो जो surfaces ने उन्होंने मटीरियल केड़ा वा, मैटल आ, नॉन मैटल आ, वुड वा, ग्लास आ, की हैगा वो तो डिपेंड करेगी नेचर ते।
एंड देयर रफनेस और समूथनेस। एक भी आप लिख सकते हैं, मीनिंग दोवां सेम आ, रफनेस वधेगी तो समूथनेस घटेगी एंड सो। जाओ कितना रफ है या वो चीज़ पर भी डिपेंड करती कि फ्रिक्शन ज़्यादा रफ होएगा ज़्यादा साड़ी फ्रिक्शन होएगी, बहुत ज़्यादा समूथ कर देंगे तो फिर भी चांस हो सकता ना। ये आल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस की जी समूथनेस या रफनेस किस तरह की है। तीसरी की डायरेक्शन हो सकती है, एक होर आप नोट कर लीए, इट्स डायरेक्शन इज along the tangent at the point of contact of two surfaces. It means it acts tangentially, it acts along the surface. मैं इसका शो करदा, इधर अप्लाइड फोर्स है तो इट विल एक्ट अलॉन्ग द, जो बनावांगे डायग्राम से अं लागे लागे रखांगे सरफेस से, इट एक्ट्स अलॉन्ग द टेंजेंट, टेंजेंशियली सरफेस एक्ट करती है। सो आ साडे को 5 ਜਿਹੜੇ रूल हैगे ने, ये अपने माइंड 'ਚ रख लेने हैगे ने, किहड़े-किहड़े साडे को। कैफ डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, एरिया ते डिपेंड नहीं करती। फिर डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट हैगी टू द अप्लाइड फोर्स। दैन फरदर किसी क्या सी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल, गलास वुड च कुछ हो रहा, गलास कंक्रीट च कुछ हो रहा, स्टील विच ते वुड अपना कंक्रीट कुछ हो रहा। सो किहड़ा पेयर हैगा जिन्हें बॉडी में आप फ्रिक्शन देखनी, उत्ते डिपेंड करता। फिर उन्होंने सरफेस किस तरह के रफ ने समूथ ने, उत्ते भी डिपेंड करती है। आ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ही कर ले। नैक्सट साढ़े को टर्म आ रही है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा थोड़ा साडा मैथमैटिकल वर्क शुरू होए ना, ये फार्मूला वगैरह आप बनाने शुरू कर दें। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इत्थे नोट कर लो, म्यू नोट करांगे। फिर मैं यूज़ कर रहा, ये वर्ड का नाम की है, यू नहीं है, ये इधर एक साइड तक है, इन्हें कहने म्यू। ये वर्ड है म्यू, इतने सिंबल यूज़ कर रहे हैं कहदा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए की कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये असी देखा सी F इज प्रोपोर्शनल टू R। याद है थे कि दिस इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, नहीं याद है तो लिख लो कितने साइड ते, F मीन्स फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, R की है नॉर्मल रिएक्शन। हाँ ला ही पढ़ के हुने आए साढ़े को, F इज प्रोपोर्शनल टू R। हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करना, इतने कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एस के कॉन्स्टेंट कह रहा म्यू। हेयर म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या नाम के रखे आप, एंड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। साढ़े गैस केस आ गया डन। ये डेफिनेशन की बन सकती आप किस तरह डिफाइन करांगे इनू, तो नोट करिए। तो की देखिया सी F इजिकल टू म्यू R, तो म्यू की साढ़े को आ जाएगा F अपॉन R।
ये साडा फार्मूला बन गया, करिए डिफाइन फिर। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ limiting force of friction between two bodies and the normal reaction. So here it is the ratio of the limiting force of friction and normal reaction. ये हुण डेफिनेशन याद रखनी है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, ये तुसीं पक्का कर लो। डन हो गया। नैक्सट असीं देखिए एक होर टर्म साडे को आ रही है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैं देख रहा टाइम काफ़ी हो रहा, बट आप 10 मिनट होर लगाने हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा नोट करना आप। Let a body of mass m is lying on a horizontal surface, P की है applied force, F की है force of limiting friction। सो आ टर्म मैं ऐसे लिखती हैं जन क्लियर हो जान। डायग्राम बना के देखिए इधर, ये साढ़े को बॉडी है, इसका मास कितना है एम। व्हाट वुड हैपन, एम जी वेट वुड एक्ट डाउनवर्ड। इतने और के लिखिए आर की साढ़े को लिख लिए नॉर्मल रिएक्शन, एम जी की साढ़े को आ लिया वेट। डन। रिएक्शन वुड बी इन द अपर डायरेक्शन। अप्लाइड फोर्स इधर अप्लाई कर दी, पी ने नोट किया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अलॉन्ग लगती, बिल्कुल नाल दे, मैं थोड़ा उपर बना रहे थे। दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये साडा की आ गया आर आ चुका। डन। हुण देखिए इनू मैं प्रोजेक्ट करदा ऐसे करती, व्हाट वुड हैपन, इन्हों दोनों का रिजल्टेंट की होएगा एफ एंड आर आई, ये देखना है। सो कुछ नंबर नोट कर लिए। इतने मान लो आ पॉइंट जो बिल्कुल नाल ये बनाया है डायग्राम में, इस तरह फाइन कर लो। बिल्कुल ही सरफेस के नाल में बनाता है। इतने आ साड़ी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है टेंजेंट, ये साड़ी फोर्स आ गई साढ़े को आ रिएक्शन जो मिलता पे उपर नूं। ये आ रहा और असी की जोड़ करना इन्हों रिजल्टेंट फाइंड करना। तो देखिए पैरेललोग्राम ला किया सी असी, ये साढ़े को इस साइड ते की है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इधर आ गया साढ़े नॉर्मल रिएक्शन। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा डायगनल। दिस डायगनल शोज द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर। इतने एंगल जो बनता की है थीटा, ये थीटा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो मैं डायग्राम इतने मान लो ओ पॉइंट है, इनू ए मान लीए, इनू बी मान लीए, इन की मान लीए आप सी मान लीए। देखो
ओ ए किहदे बराबर है आर दे, ओ बी देखो एफ के बराबर है। तो की कह रहे हैं आप अगर वैक्टर बना के देखना ओ ए वैक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ आर वैक्टर, ओ बी वैक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ एफ वैक्टर। की देखा आप फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन की देखांगे ओ सी इज रिजल्टेंट ऑफ कादा है ओ ए एंड ओ बी वैक्टर। डन हो गया। ओ सी की है रिजल्टेंट ऑफ ओ ए एंड ओ बी। हाँ देखो एक रेक्टेंगल साढ़े को आ चुकी है, पैरेललोग्राम हो गया ना। सो दीज आर टू एडजेसेंट साइड्स ओ ए एंड ओ बी, देन द डायगोनल विल गिव अस द रिजल्टेंट। और ओ सी की शो कर रहा है, ओ सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए की है, ओ ए इज आर वैक्टर, व्हाट इज दिस, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये शो ओ सी साडा रिजल्टेंट आ। देन थीटा की है, थीटा इज द एंगल बिटवीन काहदे च बनता पिया, बिटवीन ओ सी एंड आर वैक्टर, and it is called angle of friction। आ देख लो ध्यान ना किहड़ी फोर्स लगदी पे ने, वेट नीचे एक्ट करता पाया है, ये बराबर ही बिल्कुल नॉर्मल एक्शन ऊपर लगेगा। अप्लाइड फोर्स इधर और राइट साइड ते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर आ गई। असी इन्हां दोवां दा रिजल्टेंट लभना एफ का तो आर का। असी एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली, पैरेललोग्राम बन गई साढ़े कोल, इधर रिजल्टेंट आ गया ओ सी। ये रिजल्टेंट जिहड़ा इस नॉर्मल डायरेक्शन एंगल बना रहा थीटा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इनू ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहने गया। तो डेफिनेशन की बन गई, किस तरह लिखांगे, angle of friction is the angle that the resultant of resultant of limiting friction and normal reaction makes with the, so इन्होंने दोनों का रिजल्टेंट यानी कि ओ सी किन्ना एंगल बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन वाला है ना, उस डायरेक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल दैट द रिजल्टेंट ऑफ का लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन makes with the direction के दी direction of normal reaction। so normal reaction दी direction नाल जिन्ना angle रिजल्टेंट बनाता वा, that is called angle of friction। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होगी सानू। हुण अगे फर्दर चलिए, नोट कर लिया। उनकी वैल्यू लभन की कोशिश करिए। इस ट्रायंगल में देखो ध्यान ना, इन ट्रायंगल ओ ए सी देखिए असी कह रहे हैं ओ ए इज इक्वल टू आर। डन हो गया। ओ ए कितने बराबर है, आर के बराबर है। ए सी कितने बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल साढ़े कोल ओ बी के बराबर, जिहदे किहदे बराबर आ, एफ के बराबर। आ साइड एफ के बराबर, आ साइड ए के बराबर आ गई। हम देखिए टैन थीटा, व्हाट इज टैन थीटा इन दिस डायग्राम, टैन थीटा हम ख्याल रखना
ये तुसीं बनाना नहीं, सिर्फ समझने वास्ते है। ये साडा आ गया बेस किदों, अगर एंगल थीटा है। ये साडा परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अगर हुण मैं कहां व्हाट इज टैन थीटा, तो की कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिहड़ा थीटे सामने वो परपेंडिकुलर है, जिहड़ा थीटे दे नाल होए वो कौन है, बेस। तो जिहड़ा 90 डिग्री सामने हुंदा वो कौन है, हाइपोटेन्यूज। इन्हें तो हमेशा रहना 90 वाले सामने ने। ये एंगल ने दसना सानू कौन बेस है तो कौन परपेंडिकुलर है। अगर एंगल चेंज हो गया तो तुहाडा फार्मूला भी चेंज आ। हुण ये जिहड़ी चीज़ आ ये कट के की बन चुका, बेस एंगल दे नाल आ गया। एंगल के आपोजिट कौन है, परपेंडिकुलर बन जाना। इस चीज़ ने परपेंडिकुलर बन जाना। सो ध्यान नाल देखो, इस केस आ ट्रायंगल देख रहे हो सी, आ ओ ए सी, थीटे सामने कौन है, ए सी, ये बन गया परपेंडिकुलर। थीटे नाल कौन है, दैट इज ओ ए। हुण व्हाट इज ओ ए, ओ ए साढ़े को आर आ, तो ये कितना, तो टैन थीटा ए सी के बराबर एफ आर। आ चीज़ साढ़े को आ चुकी है। टैन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। वी नो म्यू की है, म्यू इज आल्सो एफ अपॉन आर। हमने पढ़िया सी, डेफिनेशन की सी कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी क्या होंदा, एफ अपॉन आर। तो की देखा आप, देयरफॉर टैन थीटा किहदे बराबर आएगा, म्यू दे। एक आ सानूं रिलेशन पता चल गया। फिर टैन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा की एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टैन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस। फिर भी कितने डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस एज वेल एज द नॉर्मल रिएक्शन। का करता पाया साढ़े कोल, सेम आ गया, डन हो गया। एक होर असीं डेफिनेशन कर लीए, आ नोट कर लो, एंगल ऑफ रीपोज। ਇਹਨੂੰ ਐਲਫਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, एंगल ऑफ रीपोज। let a body of mass m is lying on an inclined plane as shown in figure। ये बॉडी जिहदा मास एम है, इस तरह लाई कर दी भी एक इनकलाइंड प्लेन ते आ कोई एंगल बना रही है। हुण की असीं देखिए, हाँ मेरे को फाइल आ डस्टर पिया है, ये हॉरिजॉन्टल है समय, इतने मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो मोशन च नहीं हैगा, पुश करांगे तो मूव करेगा। बट हम दूसरा केस कर लगा, मैं इन्हूं हौली हौली अप करना, होर अप कर रहा, होर अप कर रहा, मूव नहीं। स्टेज कम्स वैन इट स्टार्ट्स मूविंग, जो एंगल वादा पिया पहला नहीं मूव कर रहा, पर कोई ना कोई एंगल होएगा वैन इट विल जस्ट स्टार्ट मूविंग, जस्ट मूव ही कर रहा। इस तरह की स्टेज साढ़े को आ जाएगी, हल्का हल्का टैप करांगा इट विल मूव फॉरवर्ड। ये लिमिटिंग केस ही देखना, फिर इसकी वैल्यू हौली हौली अप करिए, आप इस तरह यदि इनक्लेशन बढ़ाइए, ऊपर चुकीए कि जस्ट मूव करना शुरू कर दे। दैट एंगल वैन इट जस्ट अबाउट टू मूव on the verge of moving, that is angle is called angle of repose। असीं बाहरों कोई फोर्स नहीं लगाई, ग्रैविटी नहीं इहदा कंपोनेंट आ गया जिहड़ा इहनूं अपने वल की करदा पिया, खिंचदा पिया नीचे नूं, and that is called angle of repose। on increasing the angle of inclination
stage comes when body is on the verge of moving downwards along the inclined plane. इस तो अगे that angle of inclination is called angle of repose. कई बार उन्हें एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कह देंगे, एंगल ऑफ रीपोज। ये गल क्लीयर होगी सानू? The various forces acting on body are shown in figure. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾफ़ी क्लीयर हो चुका। ਹੁਣ ਇਹ फिगर ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ फोर्सेस शो करने की कोशिश करिए। ਕਿਹੜੀ फोर्स एक्ट करेगी? दिस वेट इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। एक हैगा नॉर्मल डायरेक्शन, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। साढ़े को आ रहा है इधर, इधर किहड़ी फोर्स आ रही साढ़े को? बॉडी किधर मूव करने की कोशिश कर रही है? नीचे नूं। इन्हूं रोकण वास्ते कौन है साइड ते? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर नूं लग रही है। बॉडी नीचे आने की कोशिश कर रही है पर यह फोर्स रोक रही है। हुण क्वेश्चन है नीचे कौन लैके आ रहा? हुण देखते हैं, आह डायरेक्शन होर बना लीए। इस वेट के दो कंपोनेंट ने, अगर आ एल्फा एंगल है तो इधर भी क्या एंगल बनेगा? एल्फा। असीं गल डिस्कस की सी, अगर दो लाइनों में आ दो लाइनों च एंगल एल्फा है, ये मैं परपेंडिकुलर ड्रा करदा किहड़ा ए, ये ड्रा करदा ए, इन्हां दे जिहड़े होणगे परपेंडिकुलर्स उन्हां विच एंगल कितना बनेगा? दैट वुड बी एल्फा ही बनेगा। सो आ जिहड़ा शो किथे, दिस एंगल इज एल्फा। सो ये वेट के दो कंपोनेंट्स आ गए, एम जी अलॉन्ग द एल्फा किहड़ा हैगा? कॉस एल्फा 90 डिग्री ते एम जी साइन एल्फा। आ देख लेना, वेट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, एम जी कॉस थीटा। नहीं क्लीयर हो रहा तो मैं तुम लिख देना नाल इत्थे किहड़ी फोर्स एक्ट कर रही है सन इत्ते? नंबर 1 वेट एम जी इज एक्टिंग vertically downwards. Number 2 normal reaction are acting इधर perpendicular to inclined plane. Further, force of limiting friction F along the surface in upward direction, ऊपर में एक्ट कर रही है। डन। Resolving weight mg into two components, ज़्यादा वधिया लिखना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
because they are at 90 degree to each other. होगा mg cos theta acts opposite to r and balances it। ਅਸੀਂ देखा बॉडी ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, इधर आर लिख लो, तो दोनों आपस बैलेंस करते पे ने। होर की साडे को आ गया एम जी साइन एल्फा, सॉरी इतने एल्फा डालना, एक्टिंग अपोजिट टू एफ। ऐसे कैसे किया, लिमिटिंग केस आ, इन द लिमिटिंग केस एफ की साढ़े को आ रहा, इन्होंने सेम कर दिए। इत्थे अगर इक्वेशन लिख ली आप चंगे रहोगे। चलो एम जी केड़ा कंपोनेंट है साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ। इस जगह तुम जगह बना लो ये किते, इत्थे लिख लो आ इक्वेशन बारे एम जी कॉस एल्फा किनू करता आर नूं, इत्थे लिखना सी एम जी कॉस एल्फा इज इक्वल टू आर। इनू कर दी इक्वेशन नंबर 1 मैंशन कर दिए, इनू कर दिए 2, दोनों देख लो प्लीज़। एम जी कॉस एल्फा इनू बैलेंस कर रहा आर नूं, ये बराबर आ जाएगा। एम जी साइन एल्फा जो नीचे एक्ट करता पाया, ये बॉडी ने डाउनवर्ड जो लैके कोशिश करता पाया, ये खिंचता पाया। ग्रैविटेशनल अट्रैक्शन का वो हिस्सा जोड़ा अलॉन्ग द सरफेस एक्ट कर रहा, इट इज़ ट्राइंग टू मूव द बॉडी डाउनवर्ड। इन्हें होर उपर किया ना, यदि वैल्यू बढ़ जानी है, जो जो उपर मूव करते हैं पे साइन एल्फा वाधा, वी नो एल्फा इनक्रीजेज, जो जो एल्फा बढ़ेगा साइन एल्फे की वैल्यू बढ़ती है, तो कॉस उल्टा होता, जो जो एल्फा बढ़ता कॉस एल्फा घटता। तो जो जो एल्फे की वैल्यू बढ़ती है दिस कंपोनेंट डिक्रीजेस एंड दिस इनक्रीजेस, फिर इन्नी के वैल्यू बढ़ जाती है, इट बिकम्स मोर दैन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैन इट विल स्टार्ट मूविंग। पर असीं उस स्टेज ते आ वैन इट इज़ ऑन द वर्ज, जस्ट कंडे ते ही है, इन्हें मूव कर जाना। उस के सारिया फोर्सिस आपस बैलेंस करके बैठिया ने, तो साडे को आ हुण कंडीशनस आ रही ने। तो तुहानूं 2 इक्वेशन दिखाई देणगियां, इस तरह देखो तुसीं आर्टिकल नूं, होर तुसीं कुछ नहीं देख रहे, डायग्राम ते नाल आ 2 जो जो तुसीं करोगे प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस, धीरे धीरे तुसीं सारियां थ्रैटिकल जी लिखनियां लाइनां ये छड्ड देनियां, कहना फ्रॉम द डायग्राम देख लो, उत्थे बना देना। आ देख रहे असीं सानूं की चाहिए, साडा एम की आ, वी आर लुकिंग फॉर एल्फा, असीं एल्फा की गल कर रहे हैं, एंगल ऑफ फ्री पोस्ट की, ये तो असीं एंगल की वैल्यू लभनी है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 डिवाइड करके देखिए, एम जी साइन एल्फा लेफ्ट साइड पे, नीचे कौन आ गया एम जी कॉस एल्फा, इधर कौन साढ़े को आ गया एफ ऊपर आर नीचे। एम जी कैंसिल हो रहे, टैन एल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, आ गल क्लीयर है। वी नो सानू की जानते असी एफ अपॉन आर कि बराबर होंदा है म्यू दे, तो देयर फोर की देखिया टैन एल्फा इज इक्वल टू म्यू, ये भी बिल्कुल म्यू के बराबर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ चुका। तो क्लीयर हो गया साडो, हुण इत्थे किते नोट कर लो, ये आर्टिकल खत्म असी कर लिया। जी इंफॉर्मेशन सानूं एक होर मिल गई, टैन एल्फा म्यू आ एंड टैन थीटा भी म्यू है, देयरफॉर एल्फा इज इक्वल टू थीटा। सो एंगल ऑफ रीपोस उन्ना ही होंदा जिन्ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन हैगा। तुसीं प्रैक्टिकल लभ सकते हैं एक्सपैरीमेंटली कर करके उस एंगल नूं
इतों ही मिल जाएगा सानू एल्फा, तो वी नो दैट एल्फा इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आ सानू क्लीयर हो चुका। सो आज असीं आ डेफिनेशनस कर लिया है। नैक्सट असीं इस ते बेस अगे चलांगे तो देखांगे भी फ्रिक्शन इज़ ए नसैसरी ईवल क्यों कही जाती है। फिर इस ते बेस वर्क करांगे, हॉरिजेंटल प्लेन ते करांगे, इनक्लाइन प्लेन ते करांगे, ये सारे केसेस डिस्कस करांगे। थैंक यू क्लास।